Hello students, I welcome you to Maths Online class. Yes students, in my last lecture I have explained you question number 1 to question number 3 of exercise 14.1 chapter number 14 comparing quantities, and I hope you all must have seen that video and all those 3 questions must be clear to you. So today I am ready to give you the solution of the remaining questions of the same exercise 14.1, and today I have to continue with question number 4. So without wasting the time, let's begin with the explanation of question number 4. Yes students, so question number 4 is the ratio of the length and breadth of a photo frame is 5:3. Find the length of the photo frame if the breadth is 15 centimeter. Photo frame, length and breadth. If length and breadth is given, that means the photo frame must be in the shape of rectangle, because rectangle has length and breadth. So it is given that the ratio between the length and breadth of a photo frame is 5:3. जो length है आपको पता है, this is called as the length and this is called as the breadth. So the ratio between the length and breadth is 5:3. अगर रेशियो में निकाला जाता है लेंथ और ब्रेथ को, तो लेंथ होगी 5 और ब्रेथ होगी 3, एंड नंबर्स में ब्रेथ गिवन है 15 सेंटीमीटर. अगर नंबर्स में देखें, सो 15 सेंटीमीटर इज द ब्रेथ विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट इज आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन में जो भी पूछा जाता है पहले आप उसको कंसिडर कर दीजिए कोई भी वेरिएबल. लाइक हेयर आई एम पुटिंग इट एज एक्स. जो भी पूछा जा रहा है उसको आप एक्स या कोई भी वेरिएबल कंसिडर करिए. सो लेट द लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम बी एक्स. Bx. You can take any variable. Now we will be arranging these information in the form of proportion. How? See what is given: length, breadth, length, breadth. So firstly I will be writing length ratio breadth, then in between the sign of proportion, that means four dots, and again length ratio breadth. Now in the first length and breadth, ये जो पहली लेंथ रेशियो ब्रेथ लिखी है, इसमें मैं जो रेशियो गिवन रेशियो है लेंथ और ब्रेथ का, दैट इज 5:3, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगी. सो 5:3. इन बिटवीन अगेन द 4 डॉट्स ऑफ प्रपोर्शन. देन लेंथ जो नंबर में आस्क करी गई है, क्वेश्चन में पूछी गई है कि लेंथ क्या होगी, और लेंथ को हमने क्या कंसिडर किया था, हमने लेंथ को कंसिडर किया था x. तो यहाँ पर लेंथ की जगह आ जाएगा x, और ब्रेथ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ब्रेथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर. सो हेयर इट विल कम 15 सेंटीमीटर. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल डू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. सो मीन्स वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है 3 और x, इसको हम प्रोडक्ट करेंगे 3 इंटू एक्स, और एक्सट्रीम वैल्यू है 5 एंड 15. सो वी विल बी राइटिंग हेयर 5 इंटू 15 सेंटीमीटर. ओके, in next step this 3 will go other side, because here it is in multiplication, when it will transfer other side it will come in division. So x is equals to 5 into 15 centimeter upon this 3. Okay, now you will cancel this 3 and 15 by the table of 3. So 3 1s are 3 and 3 5s are 15, and finally 5 into 5 is equal to what? It will equal to 25 centimeter. So the value of x is 25 centimeter and we have considered x as the length. हमने x क्या लिया था? लेंथ को x लिया था. That means अगर नंबर में देखा जाए तो लेंथ क्या आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर. फाइन. और अगर आप फाइनली इसका आंसर चेक करते हैं रेशियो में, तो रेशियो क्या गिवन था स्टार्टिंग में? 5:3. तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का रेशियो अगर हम चेक करें तो हमारी लेंथ कितनी आई है? 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी गिवन थी? 15 सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अगर कट कर दें हम, 25 और 15 बोथ आर डिविजिबल बाय द टेबल ऑफ 5. सो 5 5s are 25 and 5 3s are 15. So by this you can check that your answer is correct. See, 5:3,
5:3. So like this you can find out the missing length in this question. Clear? Okay, let us now move on to question number 5th, and it is find the ratio of the price of a pen to that of a register if the cost of the pens is rupee 96 per dozen and the cost of the registers is rupee 240 per dozen. Here we have to find the ratio between a pen and a register. हमें a means 1, एक पेन और एक रजिस्टर के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है, जबकि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, 96 रुपीज़ गिवन है पर डजन, डजन की रेट यहाँ पर गिवन है, और रजिस्टर की भी डजन की रेट यहाँ पर गिवन है 240. एंड डजन यू नो, 1 डजन मीन्स हाउ मेनी पीसेस, 1 डजन मीन्स 12 पीसेस. सो यहाँ पर 12 पीसेस की रेट गिवन है, पेन्स की भी और रजिस्टर की भी. तो पहले हम 1 पीस की रेट निकालेंगे और उसके बाद में जब हमारे पास 1 पीस की रेट आ जाएगी तब हम उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे. सो सी हाउ वी हैव टू डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, वी नो दैट 1 डजन, अगर हम 1 डजन की बात करते हैं, सो 1 डजन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी पीसेस, इट मीन्स 12 पीसेस. तो 1 डजन के अंदर टोटल 12 पीसेस आते हैं, राइट. यहाँ पर जो पेन्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स गिवन है, सो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू रुपी 96. 12 क्यों? बिकॉज हेयर इट इज गिवन पर डजन, सो पर डजन पेन्स की रेट गिवन है 96 रुपीज़. दैट मीन्स 12 पेन्स की रेट गिवन है 96, और हमें रेशियो में पूछा है अ मीन्स 1. तो हम यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन. आप 1 पेन की रेट निकालोगे पहले. जब ज़्यादा की रेट गिवन होती है और 1 की रेट निकालते हैं, मोर आइटम्स की रेट गिवन होती है, हम 1 आइटम की रेट निकालते हैं, देन एट दैट टाइम वी डू division. So here also we have to do division. So divide 96 by 12. So in the table of 12, how many times 96 comes? It comes 8 times. So rupee 8. That means the cost of 1 pen will be rupee 8. Similarly, we have to find the cost of 1 register. So firstly you will write cost of 12 registers, because it is also given in dozen. You can see that the cost of registers are also given per dozen and it is given rupee 240. That means cost of 12 register is equals to rupee 240. Fine. Now here also we have to find the cost of 1 register, because you can see here also before register a word is written. So a means 1. So we will be finding here also cost of 1 register. So the cost of 1 register, again you have to do division, because the cost of 12 items are given and we have to find the cost of 1 item. That means we will do division here. So divide 240 by 12. So you know here in the table of 12, 24 comes 2 times and then 0. That means rupee 20. So rupee 20 is the cost of 1 register and rupee 8 is the cost of 1 pen. Now it is asked in the question to find the ratio between the price of a pen and a register. So finally we will find ratio of a pen and a register. Now the cost of 1 pen is rupee 8. In between we will put the sign of ratio, that means 2 dots, and rupee 20, right? So rupee to rupee will be cancelled. 8 and 20 both comes in the table of 4. So cancel it by the table of 4. 4 2s are 8 and 4 5s are 20. So 2:5 is the ratio between a pen and a register. Clear? आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 डजन के अंदर 12 पीसेस
आते हैं। सो पहले आप 12 पेन्स की रेट गिवन है, आप 1 पेन की रेट निकालिए, उसी तरीके से 12 रजिस्टर्स की रेट गिवन है, आप 1 रजिस्टर की रेट निकालिए, एंड देन फाइनली यू हैव टू फाइंड द रेशियो between a pen and a register. Okay students? Yes. Now the next question is, a car covers a distance of 36 kilometer with 3 liters of petrol. एक कार है जो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अगर उस कार के अंदर 3 लीटर पेट्रोल है. सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? अगर उस कार के अंदर 8 लीटर्स पेट्रोल है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? इस क्वेश्चन को भी आप प्रोपोर्शन के अंदर सेट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो. आपको सिर्फ पहले ये देखना है कि कौन सी दो इंफॉर्मेशन हम प्रोपोर्शन के अंदर नोट डाउन करेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हो, एक तो डिस्टेंस आ रहा है और दूसरा आ रहा है पेट्रोल. सो ये दोनों वर्ड्स को यूज़ में लेकर हम प्रोपोर्शन सेट करेंगे. बट उससे पहले यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो जो भी पूछा गया है उसको पहले हम वेरिएबल में लेट करेंगे. तो लाइक यहाँ पर हम पुट करेंगे let the distance covered in 8 liters be x. तो हमने पहले डिस्टेंस को मान लिया यहाँ पर x. अब आप इसको प्रोपोर्शन में सेट करिए. प्रोपोर्शन में सेट करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे डिस्टेंस रेशियो पेट्रोल, देन 4 dots in between, again distance ratio petrol. Okay, so ये हमने यहाँ पर यूज में ले लिया. Now put the values. So पहले कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, जो भी वर्ड पहले गिवन है आप वो पहले लिख दीजिए. लाइक 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है तो इस डिस्टेंस के नीचे आप लिखिए 36 किलोमीटर. नाउ कितना पेट्रोल यूज हुआ है, 3 लीटर. ओके, सो हियर यू विल राइट 3 लीटर. इन बिटवीन 4 डॉट्स. नाउ डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है आगे. सो यहाँ डिस्टेंस की जगह हम पुट कर देंगे x, और कितने पेट्रोल में, 8 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो यहाँ पेट्रोल के नीचे आ जाएगा 8 लीटर. गॉट इट स्टूडेंट्स? पहले डिस्टेंस गिवन है 36 किलोमीटर और ये 36 किलोमीटर 3 लीटर ऑफ पेट्रोल के अंदर कवर होता है. आगे हमें निकालना है 8 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो यहाँ पर हमने x लेट कर लिया. अगेन दैट थिंग ओनली, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. सो मीन्स 3 लीटर इंटू x एंड एक्सट्रीम्स 36 किलोमीटर इंटू 8 liter. Fine. Now in next step this 3 liter will go that side. So x here 36 kilometer multiply by 8 liter upon 3 liter like this. Now cancel liter and liter. Then 3 and 36 will also cancel. 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 twos are 6. So x is equals to 12 kilometer into 8. So 12 eights are, you all know very well, 12 eights are 96 kilometer. So that particular car will cover the distance of 96 kilometer in 8 liters of पेट्रोल. वो जो कार है वो अगर उसके अंदर 8 लीटर पेट्रोल है तो 8 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो कवर करेगी 96 किलोमीटर का डिस्टेंस. ओके, इट्स वेरी सिंपल. बस आपको प्रोपोर्शन के अंदर इसको सेट कर देना और सेट करने के बाद में आप वैल्यूज पुट करिए, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, देन इजीली यू कैन कैलकुलेट द आंसर. फाइन. नाउ question number 6 is having two parts. A part I have already given you. It is having one more part, that is B part, and it is how much petrol is required to cover a distance of 216 kilometer. The first statement will be same. A car covers a distance of 36 kilometer with 3 liters of petrol. एक कार 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के अंदर. तो अब हमें बताना है बी पार्ट के अंदर कि अगर वही कार 216 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो उस कार के अंदर कितना पेट्रोल फिल करवाना पड़ेगा. फाइन. सो इन ए पार्ट डिस्टेंस वाज मिसिंग एंड इन दिस बी पार्ट
petrol is missing. So now we will consider petrol as the variable. So first of all, let the quantity of petrol required to cover a distance of 216 किलोमीटर बी, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर ले लीजिए, जैसे अब मैंने यहाँ पर ले लिया y, बिकॉज ए पार्ट में मैंने वेरिएबल x लिया है और बी पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 6 का ही है, इसलिए मैंने बी पार्ट के अंदर वेरिएबल चेंज करके x की जगह y पुट कर लिया है. नाउ अगेन यू हैव टू सेट द headings for the proportion. So the headings of the proportion will be same, distance, petrol, again distance and petrol. So this side I will start with distance, ratio, petrol, and then proportion, distance, ratio, petrol. Okay, now हाउ मच डिस्टेंस, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया था 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के अंदर. ओके, नाउ कितना डिस्टेंस कवर करना है, 216 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और पेट्रोल नहीं पता कितना पेट्रोल फिल करवाना पड़ेगा, तो पेट्रोल की जगह हमने लिया है वेरिएबल y. ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. कभी भी अगर आप अपने क्वेश्चन को प्रोपोर्शन के अंदर सेट करते हैं तो प्रोपोर्शन में सेट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आपकी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ही होगी. नाउ अब आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की जगह लिखेंगे 3 लीटर इंटू 216 किलोमीटर. मीन्स वैल्यू, मिडिल वैल्यूज ले ली हमने यहाँ पर, और एक्सट्रीम में आउटर वैल्यू. सो 36 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल y. Okay, now y will remain there and this 36 will come here in the denominator. So 3 liter into 216 kilometer upon 36 kilometer is equal to y. Okay, now cancel this kilometer and kilometer. This 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 3 2s are 6. Now 12 and 216 I am cancelling it directly by the table of 12. So 12 1s are 12, 21 नहीं आता है 12 की टेबल में, आपको 216 को कैंसिल करना है. देखिए 12 से 216 को जब आप 12 से कैंसिल करोगे, 12 1s are 12, यहाँ पर 12 की टेबल में 21 से स्मॉलर नंबर, सो 12 की टेबल में 21 से स्मॉलर 21 के नियरेस्ट 12 ही आता है. इट कम्स 1 टाइम. So 21 minus 12 is equals to what? Is equals to 9. So 9 will be carry forward here. It will become 96 and in the table of 12, 96 comes 8 times. So it will come here 18. That means y is equals to 18 liter. Which unit is remaining? Kilometer तो cancel हो गया. Unit कौन सी रही है? Liter. So that liter will come at the last. That means if the car has to move 216 kilometer, then it needs how much petrol? 18 liter of petrol in the petrol tank. Okay, so in A part distance was missing and in B part petrol, the quantity of petrol is missing. So like this we can find it out easily. Firstly arrange it in the form of proportion and then by the method of product of means and product of extreme you can easily calculate the answer. Fine. So students, the next question is question number 7, which goes like this. Shelly invited 24 of her friends on her birthday party. Shelly ने अपने 24 friends को invite किया अपनी birthday party में. In the party, the ratio of boys and girls was 3:5. यहाँ पर जो boys और girls को उसने invite करा उनका ratio given है, वो given ratio है 3:5. Now, this ratio is excluding Shelly. इस ratio में Shelly included नहीं है. Shelly को exclude करके यानी Shelly को हटाकर इस ratio को दिया गया है question के अंदर.
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन्वाइटेड बाय शैली ऑन हर बर्थडे पार्टी। यहाँ पे जो बॉयज़ और गर्ल्स को बुलाया गया है उनका रेशियो गिवन है और हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स शैली के बर्थडे पार्टी के अंदर इनवाइट किए गए थे। फाइन, गॉट द क्वेश्चन। शैली को खुद को काउंट नहीं करना है, शैली को हटाकर नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें कैलकुलेट करने हैं कि शैली के बर्थडे पर कितने बॉयज़ और गर्ल्स आए थे। सो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस हाउ टू डू इट, सी टोटल गिवन है हमारे पास में कि टोटल उसके 24 फ्रेंड्स आए थे और अगर शैली को मिला लेते हैं तो टोटल बच्चे कितने हो गए वहाँ पर 25, बट शैली को हमें काउंट नहीं करना है। सो टोटल 24 फ्रेंड्स ऑफ शैली वर देयर इन द पार्टी and the ratio of the boys and girls are given in the question 3:5. So first of all you will write the ratio of boys and girls and the ratio of boys and girls is equals to 3:5. Okay, now in next step you will be writing the sum of ratio. जो भी रेशियो गिवन है उसका सम करना है हमको, हम 3 और 5 को ऐड करेंगे। सो सम करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा 8। नाउ टोटल फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स को बुलाया गया था? सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनवाइटेड वर हाउ मैनी? 24. सो टोटल 24 फ्रेंड्स वर देयर। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फर्स्ट रेशियो किसका गिवन है। अब रेशियो कैसे पता चलता है, पहला कौन सा है, यहाँ पे क्या गिवन है? बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन में भी देखिए द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो पहले जो नंबर होता है वो फर्स्ट वर्ड का होता है, लाइक 3:5। तो ये 3 बॉयज का है और 5 गर्ल्स का है। ओके, ये रेशियो 3 बॉयज का है और 5 गर्ल्स का है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ड है बॉयज, सो बॉयज का रेशियो होगा 3 और सेकेंड वर्ड है गर्ल्स, सो गर्ल का होगा 5। ओके, सो हम फर्स्टली करेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन द पार्टी। सो पार्टी के अंदर कितने बॉयज थे, इसको निकालने के लिए जो फॉर्मेट बनेगा आपका वो क्या होगा? बॉयज का नंबर क्या था रेशियो का? 3। इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। सो 3 अपॉन रेशियो का टोटल कितना है? 8। रेशियो का टोटल है 8, इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। सो टोटल 8 में से 3 बॉयज थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रेंड्स। सो टोटल फ्रेंड्स कितने थे? 24। अब आप इसको सॉल्व करिए। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 3 3 ज़ा 9। दैट मीन्स 9 बॉयज वर देयर इन द पार्टी। आउट ऑफ 24, 9 बॉयज वर देयर। Similarly, we will find the number of girls. So number of girls in the party. So it will be again calculated by arranging it firstly in the fraction. पहले आप इसको फ्रैक्शन में अरेंज करिए। So गर्ल्स का रेशियो कितना था? 5, तो न्यूमरेटर में आएगा 5 और सम ऑफ रेशियो कितना था? 8। जो सम होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो यहाँ पर 8 और टोटल कितने फ्रेंड्स थे? 24। सो मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, नाउ अगेन कैंसिल। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15. That means 15 girls were there in the party and 9 boys were there. 15 girls and 9 boys were there in the party. और अब अगर आप इसको टोटल करेंगे सो 15 + 9 will be equal to 24. फाइन, बस ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं जिसके अंदर टोटल गिवन है, रेशियो गिवन है और दोनों का एग्जैक्ट नंबर पूछा गया है, उसके लिए आप पहले गिवन रेशियो लिखेंगे, फिर रेशियो का सम निकालेंगे। फाइन, रेशियो का सम निकालने के बाद में आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करा है बॉयज़ निकालने के लिए। 3 बॉयज़ का जो रेशियो का नंबर है वो न्यूमरेटर में और सम ऑफ रेशियो डिनोमिनेटर में, देन मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रेंड्स। फाइन, इसी तरीके से गर्ल्स का निकालने के लिए गर्ल्स का रेशियो था 5, तो 5 आएगा न्यूमरेटर में, टोटल ऑफ द रेशियो दैट इज 8 विल कम इन द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय द total friends. Then you solve it to get the answer. Fine students? So let us now move on to the last question of this exercise, that is question number 8, and it goes like the number of men and women who attended a concert is in the ratio 2:3.
3. So the number of men and women attended one concert. Concert is a kind of music concert where the singer sings and the audience enjoy it. So there were some men and women there to enjoy the concert and their ratio is given in the question. 2:3 given है कि इतने men गए थे और इतने women गई थी. If there were a total of 565 people, ये भी given है कि total कितने लोग थे वहाँ पर, total 565 लोग थे उस कॉन्सर्ट के अंदर. सो हाउ मेनी मेन एंड women वर प्रेजेंट देयर. तो कितने मैन और कितनी women वहाँ पर प्रेजेंट थी. सेम है क्वेश्चन जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था 7. तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन रेशियो है आप वो लिखेंगे. सो द रेशियो ऑफ men and women is equal to how much? 2:3. So this is the ratio of men and women. In the next step you will be doing the same thing, sum of ratio. Next step में आपको ratio का sum निकालना है. So ratio given है 2:3, इसका आप sum करेंगे. So 2 + 3 is equals to 5. Now total number of people. So total people कितने हैं कॉन्सर्ट के अंदर given है. So total people were 565. Okay. Now we have to find out the number of men in the concert. So number of men का रेशियो कैसे निकालेंगे, मीन्स आप नंबर कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आप पहले उसको फ्रैक्शन के अंदर अरेंज करेंगे. सो men and women. सो फर्स्ट रहेगा 2 men का और 3 रहेगा women का. फाइन. सो जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो men के लिए जो न्यूमरेटर है वो men का जो नंबर है वो 2 रहेगा. लाइक न्यूमरेटर में रहेगा 2 और डिनोमिनेटर में हमेशा सम ही आएगा. सो फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करेंगे सो मैन का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5. दैट मीन्स टोटल 5 में से 2 मैन थे और टोटल पीपल कितने थे वहाँ पे 565. इसको हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में. ओके. नाउ कैंसिल इट. 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे कैंसिल करिए. 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. सो 113. अब इस 113 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए. तो 113 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 226. सो 226 men were there in the concert. Similarly we will find out the number of women. सो नंबर ऑफ women के लिए जो आप फ्रैक्शन निकालेंगे वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, women का नंबर क्या है 3 और टोटल ऑफ रेशियो क्या था 5. तो इसका फ्रैक्शन निकलेगा 3/5, यानी 5 में से 3 women थी और टोटल कितना था यहाँ पे 565. कैंसिल करिए. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. सो मल्टीप्लाई करो 113 को 3 से. सो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3. सो 339 women were there in the concert. So this is the answer. 226 men were there and 339 women were there to attend the concert. Okay. So question number 7 and question number 8 is of similar pattern जहाँ पर ratio given है और total number of people given है और आपको निकालना है कि कितने men या women उस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट में या प्रीवियस क्वेश्चन में शैली के बर्थडे पार्टी में बॉयज़ और गर्ल्स प्रेजेंट थे. फाइन. पहले आप फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन के बाद में टोटल नंबर ऑफ पीपल जो भी प्रेजेंट थे वहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करिए एंड देन यू कैलकुलेट योर आंसर. Fine students, I hope all the questions which I have explained you today is clear to you. If you find doubt, confusion, then I request you to please watch the video again related to that particular question in which you are finding the doubt. And if still you find any doubt, then you can leave your comment in the comment section. I will clear your doubt in my next lecture. Okay, so that's all for today. Now I will meet you back in next class in which I will be starting the new exercise, that is exercise 14.2. So till then, goodbye and take care of yourself. Thank you students.